آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا۔ آج تاریخی دن ہے، امن کے لیے نیا راستہ کھلا ہے۔ دونوں ملکوں کے لیڈروں نے جنگ نہ لڑنے کی یقین دہانی کرائی۔ دونوں ملک تجارت اور معیشت کو ترجیح دیں گے، جنگیں نہیں، امن اور تجارت چاہتا ہوں۔ صدر ٹرمپ کی آذربائیجان کے صدر اور آرمینیا کے وزیر اعظم کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں ایک بار پھر بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کا تذکرہ۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے سربراہان کا نوبل پیس کمیٹی سے صدر ٹرمپ کو نوبل امن انعام دینے کا مطالبہ۔ پاکستان کا آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تاریخی امن معاہدے کا خیر مقدم۔ معاہدہ جنوبی قفقاز میں امن، استحکام اور تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز۔ ہم صدر الہام علیوف کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ برادر ملک آذربائیجان کے شانہ بشانہ کھڑا رہا، اس تاریخی موقع پر بھی ان کے ساتھ ہے۔ امریکہ کے سہولت کار کردار کو بھی سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سماجی رابطہ کی ایپ ایکس پر پیغام۔ فیلڈ مارشل بھارت کے اعصاب پر سوار۔ مودی نے عاصم منیر کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے دورہ امریکہ سے انکار کیا۔ امریکی جریدے بلومبرگ حقیقت سامنے لے آیا۔ رپورٹ کے مطابق 17 جون کو ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی کی 45 منٹ فون پر گفتگو ہوئی۔ ٹرمپ نے مودی کو G7 اجلاس کے بعد واشنگٹن آنے کی دعوت دی۔ مودی نے فیلڈ مارشل سے ملاقات کے خوف سے دعوت ٹھکرا دی۔ کروشیا کا بہانہ بنا کر واشنگٹن نہیں گئے۔ بھارت پر امریکی ٹیرف میں مزید اضافہ۔ امریکہ اور بھارت کے تعلقات شدید سرد مہرے کا شکار۔ بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدہ نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ کے صاف انکار نے فاشسٹ مودی کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ رد عمل میں بھارتی وزیر دفاع کا طے شدہ دورہ امریکہ بھی منسوخ۔ مودی سرکار نے امریکہ کے ساتھ جدید ترین لڑاکا طیاروں، فوجی گاڑیوں اور میزائلوں کی خریداری کے تمام معاہدے معطل کر دیے۔ جب سرزمین نے پکارا، سوچا نہ ہم نے دوبارہ۔ پاکستان کا 79واں یوم آزادی، نئے ملی نغمے کا پرومو جاری۔ جب سرزمین پکارا، سوچا نہ ہم نے دوبارہ۔ جذبہ حب الوطنی کا خوبصورت اظہار، مارکہ حق کے دوران ظاہر ہونے والے قومی جذبے کو نغمے میں اجاگر کیا گیا۔ یوم آزادی و مارکہ حق 2025 کی مرکزی تقریب میں نغمے کی شاندار پیشکش کی جائے گی۔ ناظرین، یوم آزادی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ سرکاری اور نجی عمارتوں کو قومی پرچموں اور سبز اور سفید روشنیوں سے سجا دیا گیا ہے۔ شہریوں نے اپنے گھروں پر قومی پرچم، رنگ برنگی جھنڈیاں، برقی کمکمے اور خوبصورت لائٹس لگا کر جشن آزادی کی تیاریوں کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ ہماری ہر خوشی، ہر کامیابی پاکستان کے نام ہے۔ ہمارے دل کی ہر دھڑکن کا نام پاکستان ہے۔ اتنی بڑی دنیا میں اے پاکستان، تو ہی ہماری پہچان ہے۔ اس وطن کو ہم پہ ناز ہو، ہم سب کے دل کی ایک آواز، پاکستان زندہ باد۔ یوم آزادی اور مارکہ حق کی کامیابی پر عوام کے تاثرات۔ جب سرزمین نے پکارا، سوچا نہ ہم نے دوبارہ۔ افغان سرحد سے بھارتی حمایت یافتہ خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام۔ یوب کے سرحدی علاقے سمبازا میں سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی، 33 دہشت گرد جہنم واصل۔
اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد کا بڑا ذخیرہ برآمد۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ کامیاب کارروائی پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کی سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی۔ مودی کے انتخابی فراڈ کا پردہ چاک۔ مودی راج میں جمہوریت نام کی اور الیکشن ایک سٹیج ڈرامہ۔ جمہوریت کا لبادہ اوڑھے مودی سرکار نے انتخابی فراڈ کو ریاستی پالیسی بنا لیا۔ مودی راج میں ووٹ بے معنی، ای وی ایم سے جیت فکس۔ بہار الیکشن سے پہلے راہل گاندھی نے مودی کے جعلی مینڈیٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ بی جے پی کے ووٹروں کی تعداد بڑھانے کے لیے جعلی ووٹرز کو شامل کیا جا رہا ہے۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں 1 کروڑ سے زائد نئے ووٹرز نے ووٹ دیا جو رجسٹرڈ نہیں تھے۔ راہل گاندھی۔ غزہ کی صورتحال پر عالمی تشویش۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس سلامتی کونسل کے متعدد ارکان کی درخواست پر ہوگا۔ اجلاس میں غزہ شہر کا کنٹرول سنبھالنے کے اسرائیلی اعلان کے بعد کی صورتحال پر غور ہوگا۔ کئی ممالک اسرائیلی جارحیت پر اپنی تشویش کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ فلسطینی سفیر ریاض منصور۔ پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا حامی۔ غزہ شہر پر قبضے کے صہیونی منصوبے کی شدید مذمت۔ اسرائیلی کابینہ کا فیصلہ غزہ میں جاری تباہ کن جنگ میں خطرناک اضافے کے مترادف ہے۔ فلسطین پر غیر قانونی قبضہ برقرار رہنے تک امن خواب ہی رہے گا۔ عالمی برادری غزہ میں اسرائیل کی بلا جواز جارحیت فوری رکوائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اسرائیلی کابینہ کے فیصلے پر رد عمل۔ عالمی برادری کی غزہ شہر پر قبضے کے اسرائیلی منصوبے کی شدید مذمت۔ سعودی عرب، ترکی، چین، برطانیہ، آسٹریلیا سمیت مختلف ملکوں کا اظہار تشویش۔ غزہ پر فلسطینی عوام کا حق ہے، فلسطینیوں کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ غزہ پر قبضے کا صہیونی اقدام بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے۔ فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ غزہ پر قبضے کے اعلان کے بعد جرمنی کا اسرائیل کو فوجی ساز و سامان کی برآمد روکنے کا فیصلہ۔ یو این سیکرٹری جنرل کی غزہ پر کنٹرول سنبھالنے کے اسرائیلی حکومت کے فیصلے کی شدید مذمت۔ اسرائیلی حکومت کا فیصلہ بحرانی صورتحال میں خطرناک اضافہ۔ 2 ریاستی حل کے بغیر اس تنازع کا کوئی پائیدار حل ممکن نہیں۔ غزہ فلسطینی ریاست کا بنیادی حصہ ہے جسے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس۔ ڈی پی ورلڈ کے اشتراک سے ایس آئی ایف سی کا ڈیجیٹل تجارت کے فروغ میں کلیدی کردار۔ دبئی میں زیرو کاسٹ ایکسپورٹ مارٹ کے قیام کا اعلان۔ ڈی پی ورلڈ پاکستانی برآمد کنندگان کے لیے تجارتی مرکز کی تعمیر بلا تعمیراتی لاگت کرے گا۔ ایکسپورٹ مارٹ سے برآمد کنندگان کی مصنوعات کو نمائش، ترسیل اور عالمی منڈی تک براہ راست رسائی ملے گی۔ انتہا پسند ہندوتوا نظریے پر مبنی بی جے پی اور آر ایس ایس کی دہشت گردی کا پردہ چاک۔ سابق ترجمان یشونت شندے کا آر ایس ایس اور بی جے پی رہنماؤں کا دہشت گردی میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ آر ایس ایس مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے بھارت میں دہشت گرد حملوں کی ہدایت دیتی ہے۔ مہاراشٹر میں بم دھماکوں کا منصوبہ آر ایس ایس سے منسلک افراد نے بنایا۔ یشونت شندے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں طلبہ سے خصوصی نشست کی اور طلبہ کے سوال اور جواب کا کھل کر جواب دیا۔ اس موقع پر طلبہ کی جانب سے اس سیشن کی بھرپور پذیرائی اور قومی جذبے کا اظہار کیا گیا۔ رب کی عطا سے تو ملا ہم کو، احسان اس کا ہے یہ، وجود سے تیرے سانسیں جڑی، جان بھی ہے تیرے لیے، ہو جان بھی۔ یوم آزادی کے موقع پر معروف گلوکار حسنین علی پراچا کا نیا ملی نغمہ اے میرے وطن ریلیز۔ نغمے میں وطن سے محبت اور شہداء کی قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت ملی نغمہ، قربانی اور تجدید عہد وفا کا پیکر۔
पैगाम माजी पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। यौम आज़ादी मार्का हक के मौके पर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कस्तूरी लाल का पैगाम माजी। मेरे दादाजी ने यह फैसला किया कि इस्लामी मुआशरे में हमारा जीना उठना बैठना ज़्यादा महफूज है, इसीलिए हमने यही सरजमीन अपना वतन बनाने का इरादा किया। सिंध के सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का 3 रोज़ा उर्स गवर्नर सिंध कामरान टसूरी और गवर्नर KP फैसल करीम कुमरी ने तकरीबात का इफ्तिताह किया। दरगाह पर चादर चढ़ाई। उर्स के पहले रोज़ सूबे भर में आम तातील का ऐलान, दूसरे रोज़ कॉन्फ्रेंस होगी। आखिरी रोज़ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह शाह लतीफ़ अवार्ड तकसीम करेंगे। तरोबा में पहला वनडे पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त। 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। ग्रीन शर्ट्स ने 281 रन का हदफ 48.5 ओवर्स में 5 विकेटों पर हासिल किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान के 53, बाबर आजम के 47 रन। डेब्यूटेंट हसन नवाज ने 63 की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। दूसरा मैच कल तरोबा में ही खेला जाएगा। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। A partnership of composure. 12वीं वर्ल्ड गेम्स का चीन में बाकायदा आगाज। चेंगडो के तियानफो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, शानदार आतिशबाजी और लाइट शो का मुजाहरा। वर्ल्ड गेम्स में 30 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले शामिल। स्क्वाश, किक बॉक्सिंग और टग ऑफ वॉर भी इवेंट का हिस्सा। चीन पहली मरतबा वर्ल्ड गेम्स की मेज़बानी कर रहा है। हर 4 साल बाद होने वाली गेम्स का आगाज 1981 में हुआ था। अमेरिका में WTA 1000 सिंसिनाटी ओपन, साबिक आलमी नंबर 7 अमेरिका की डैनियली कोलिंस का पहले मरहले में ही सफर तमाम। कोलिंस को उनकी हमवतन टेलर टाउनसेंड ने स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। फ्रांस की कैरोलाइन गार्सिया ने बर्तानिया की सोने कार्टिल को हरा दिया। और वर्ल्ड सर्फ लीग फ्रांसीसी स्टॉप ताहिती प्रो अमरीकी सर्फर ग्रिफिन कोलापेंट्रोपी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। जनूबी अफ्रीका जॉर्डी स्मिथ बमुश्किल इब्तदाई राउंड से बाहर होने से बचे। अमेरिका के कोल हाउसमैन, फ्रांस के काओले वास्ट भी कामयाब। इटली के लियोनार्डो फियोरांती, ब्राज़ील के इटालो फेरेरा और गार्गाडोरो, ऑस्ट्रेलिया के जैक रॉबिन्सन और मैक्सिको के एलन कैलेंडर ने भी अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। खेल और खिलाड़ियों की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया है। आज़रबाईजान के सदर और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी इस मुआहिदे पर बतौर गवाह दस्तखत किए हैं। इस मौके पर सदर ट्रंप दोनों रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया ने जंगबंदी के मुआहिदे पर दस्तखत कर लिए हैं। अब दोनों ममालिक अपनी तरजीह तिजारत और मईशत को देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैंने दोनों ममालिक को कहा कि जंग नहीं तिजारत करें और उन्होंने वादा किया है कि आइंदा जंग नहीं करेंगे। अमरीकी सदर के मुताबिक मुआहिदे में टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत AI के शोबे में ताउन भी शामिल है। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि मैं जंगे नहीं अमन और तिजारत चाहता हूँ। सदर ट्रंप ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का तज़किरा किया। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के सरबराहान ने भी नोबेल पीस कमेटी से सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने का मुतालबा कर दिया।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान व्हाइट हाउस में सरबराही इजलास में सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरपरस्ती में तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम करता है। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि ये संग मील दहाइयों से तनाज़ात और इंसानी अलमियों के शिकार खित्ते के लिए अहमियत का हामिल मुआहदा है, जो अमन, इस्तेहकाम और ताउन के एक नए दौर का आगाज़ है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर इल्हाम अलीयव और आज़रबाईजान के आवाम को तारीखी मुआहदे पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मुआहदे से खित्ते के पुरअमन मुस्तकबिल की राह हमवार होगी, जो दानिशमंदी, दूरअंदेशी और बसीरत का मज़हर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से बरादर मुल्क आज़रबाईजान के शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर आज़म ने अमरीका के मसालहती किरदार को सराहते हुए कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों फरीकों को करीब लाने और मुआहदा तय कराने में मदद दी, जो तिजारत, रवाबित और इलाकाई इंज़माम के नए रास्ते खोलता है। उन्होंने उम्मीद का इज़हार किया कि मुकालमे की ये रूह तवील अरसे से तनाज़ात के शिकार दीगर खित्तों के लिए भी मिसाल बनेगी। एक मकसद है जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, और वो मकसद ये है कि जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक विजन है कि हम इस पाकिस्तान रेलवे को रीजनल कनेक्टिविटी से लेके लोकल जो हमारी ट्रेन्स का चलना है, पैसेंजर फैसिलिटेशन से लेके इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम किस तरीके से अपने अपने जगह के ऊपर काम करके रेलवे को तरक्की दे सकते हैं। इसके लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 चीज़ें जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सबसे पहले हमारे ज़िम्मे लगाई, वो अपने सहाफ़ी भाइयों के ज़रिए पूरी पाकिस्तानी कौम को बार बार बता भी रहा हूँ, फिर बताने जा रहा हूँ। एक तो सबसे पहले ये था कि हम अपने पाकिस्तान रेलवे के सिस्टम को डिजिटाइज करें। उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टिकटिंग जो है वो डिजिटाइज हो चुकी हुई है। हमारी ऐप जो है ये जो ट्रैक रेल ये वाली अगर आप जाएं तो आप अपनी ट्रेन को जो है वो ट्रैक कर सकती हैं। हमारे बड़े स्टेशन के ऊपर एटीएम कार्ड, पॉज मशीन्स ये भी लग गई हैं। अब हम अपनी अटेंडेंस को इंश्योर करने जा रहे हैं, अपनी इंस्पेक्शन को इंश्योर करने जा रहे हैं। वाईफाई 40 स्टेशन के ऊपर पूरे पंजाब के अंदर वजीर आला पंजाब की कॉरपोरेशन से ताउन से 40 स्टेशन, एक स्टेशन के ऊपर हमारा वाईफाई नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में शुरू हो गया है, बाकी अब कराची, सक्कर, हैदराबाद और फैसलाबाद और इन जगहों के ऊपर भी हम इंशाल्लाह 40 के करीब स्टेशन के ऊपर इंशाल्लाह फोकस करेंगे। उसके अलावा हमारी आउटसोर्सिंग का एक हमें दिया गया, हदफ दिया गया, अल्लाह के फजल करम से उसके ऊपर 30 सितंबर हमारी लास्ट डेट है। जो इश्तिहारात अब तक आ चुके हैं, रॉयल पाम से लेके पैसेंजर ट्रेन हमारी 9 से 11 जो है वो आउटसोर्स है, बाकी आउटसोर्स होने जा रही हैं। फ्रेट ट्रेन हमारी आउटसोर्स होने जा रही है। हमारे ये जो गेस्ट हाउसेस थे जिसे आप वो हमारे आउटसोर्स करने जा रहे हैं। ये जो हमारे 4-5 हमारे सिलोन थे मिनिस्टर से लेके सब लोगों के, वो सारे हमने आप अपनी आवाम के लिए खोल दिए हैं। वो अपने एक हमने माकूल सा फेयर रखा है, वो हर शख्स जो है अब इस्तेमाल कर सकता है अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। उसमें पीएम का कभी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, वो सिलोन भी है, मेरा भी है, सीओ साहब का है, चेयरमैन का है, आईजी का है, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे के ऊपर से कोई डॉलर नहीं गिर रहे थे कि हम सिलोनों के ऊपर जो है वो याशी करें या वहाँ फिरें, इसलिए हमने अपने लोगों के लिए खोल दिया। पैसे दें, हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों सूरतों में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हमने अपने तमाम लोगों के कानों में ये चीज़ डाल दी है। इसके साथ साथ हमारी, जैसे मैंने आपको कहा कि सफाई सुथराई का निज़ाम, इस वक्त रावलपिंडी के तीनों स्टेशन, खानेवाल स्टेशन, मुल्तान स्टेशन और इसके साथ साथ कराची की अभी हम एग्रीमेंट सिंध गवर्नमेंट के साथ करने जा रहे हैं, वो स्टेशन, सारे स्टेशन जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह रायवेंड का, उकाड़े का, लाहौर के तीनों स्टेशन, ये सब आउटसोर्स हो चुके हैं। अब वहाँ सफाई सुथराई जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो पंजाब की है वो कर रही है। इसी तरीके से हमने बाकी हमारी स्लीपर फैक्ट्रीज हैं उनके लिए भी ऐड आ गया हमारा आउटसोर्सिंग का, वो भी इंशाल्लाह जल्द हम उसको खोलेंगे और जो भी उसके मेजर बिडर होगा उसको हम देंगे। हॉस्पिटल्स हैं हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उनकी आउटसोर्सिंग है। हमारे स्कूल हैं 14, जिसमें से तकरीबन 4 से 6 जो है वो हो चुके हैं, उनके ऊपर बिड आ चुकी है और बाकी दोबारा हम टेंडर करने जा रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह ताला हमें, ड्राई पोर्ट्स हैं हमारे, ड्राई पोर्ट्स को भी हम आउटसोर्स करने जा रहे हैं।
हमारी इस वक्त की जो ट्रेनें आउटसोर्स हो चुकी हैं, जो अभी बिजनेस ट्रेन का हमने इफ्तिताह किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, उसमें एक खूबसूरत डाइनिंग कार भी हमने की। हमने चौथी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो आते ही हमने की, पहले हमने क्लीननेस की बात की, पैसेंजर फैसिलिटेशन की बात की, और उसमें हमने फूड क्वालिटी की बात की। किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर मेरे भाइयों को, आप हमसे ज्यादा, क्योंकि मैंने हमेशा आपको अपनी आंख भी कहा है और अपने कान भी कहा है, आपकी तरफ से जब कोई वीडियो मेरे साथ शेयर होती है तो मैं उस वीडियो का बुरा नहीं मनाता, मैं उस वीडियो को एड्रेस करवाता हूँ अपने सीईओ के जरिए, अपने डीएस के जरिए, ताकि बेहतरी आ सके। और मैं अभी भी चाहूंगा, बहुत बड़ा काम करने वाला है पाकिस्तान रेलवे। इस 4 महीनों में तब्दील नहीं हुई, ना होनी है, आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह तब्दील होने जा रही है। तो हमने यहाँ पे डीजी फूड से हमने बात की चारों से, यानी रेलवे ने अपना एक निजाम बनाया हुआ था क्वालिटी इंश्योर करने का। कोई स्टेशन पे फूड अथॉरिटी का शख्स दाखिल नहीं हो सकता था। अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी दुआओं के नतीजे में अब हमने चारों केपीके, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब तमाम डीजी फूड को मैंने लेटर लिखा कि आपके हमारे स्टेशन आपके लिए खुले हैं, आप रैंडम हमारे स्टेशन पे आके फूड अथॉरिटी के जो लोग हैं उनके जरिए आप सैंपलिंग कर सकते हैं। जो किचन हमें खाना फराम कर रहे हैं, कैटरिंग दे रहे हैं ट्रेन के अंदर, सीओ साहब सुन रहे हैं, उनके मैंने एड्रेसेस लिए, एड्रेसेस लेके उनमें से ज्यादातर पंजाब में थे, वो सारे हमने डीजी फूड को भेज दिए ताकि वो उनको जाके देखे कि क्या वो एसओपीज के मुताबिक चल रहे हैं, क्या क्वालिटी इंश्योर कर सकते हैं। ये भी हमने उनके हवाले कर दिया, खुद हवाले किया कि ये हमारे एड्रेसेस हैं, इनको जाके देखिए ताकि लोगों को क्वालिटी फूड मिल सके। वजीर आज़म पाकिस्तान का 2-3 चीजों के ऊपर बड़ा फोकस, ये चीजें तो वो थी, लेकिन लॉन्ग टर्म चीजें हैं कुछ, ये तो शॉर्ट टर्म है। इंशाल्लाह 31 दिसंबर आउटसोर्सिंग, 30 सितंबर और 31 दिसंबर तक ये जितनी चीजें हैं, जिसमें हमारा वाईफाई से लेके हमारी मजीद ट्रेनों की सफाई सुथराई से लेके और बाकी जो फैसिलिटेशन है वो हम मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन जो बड़ा काम करने वाला है, जो पाकिस्तान रेलवे में 1861 का बिछा हुआ ट्रैक है, उस हवाले से बहुत सारी खुशखबरी हैं। हमने तीनों सूबों को अप्रोच किया। मैं वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें आने वाले 3 साल के लिए 50 अरब रुपया जो है, जो अपलिफ्टिंग के लिए, जो उनके बजट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये आएंगे खाएंगे पिएंगे सोचेंगे वाली बात नहीं है। वो क्या है कि लाहौर से फैसलाबाद, लाहौर से नारोवाल, लाहौर से कोटद्दू, लाहौर से कसूर, इस तरह के 8 के करीब रूट्स हमने निकाले जो उनको दिए। उन्होंने पूछा ये अपलिफ्ट कैसे होंगे, मैंने कहा जी इतने पैसों से होंगे। वो उन्होंने अप्रूव किए और वहां पे डीएमयू चलाएंगी। डीएमयू चाइना से डीजल मैकेनिकल यूनिट, यही कहते हैं, मल्टीपल यूनिट, डीजल मल्टीपल यूनिट जो है ये चलेगा और वो 650 की उसकी कैपेसिटी है और उसको बढ़ाया भी जा सकता है, आगे भी इंजन है पीछे भी इंजन है। इस तरह लाहौर रावलपिंडी के 250 अरब रुपया आने वाले 3 सालों के लिए उन्होंने रख दिया वजीर आला पंजाब ने। फिर इसी तरीके से शदारा से रायबंड तक दोनों तरफ लीनियर पार्क बनाने का काम शुरू हो गया 2 अरब 35 करोड़ रुपए की लागत से। ये वो चीजें थी। और 3 स्टेशन जो है कराची, लाहौर, रावलपिंडी और टेक्सला, ये पंजाब के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो है वो अडॉप्ट कर लिए हैं। इसी बुनियाद पे जब मैं गया कोयटा के अंदर, तो हम वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी साहब के शुक्रगुजार हैं। बल्कि परसों आप ही के चैनल्स के जरिए खबर चल रही थी, और वो खबर क्या थी? वो खबर ये थी कि वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा, जो हमसे आज से 2 महीने पहले उनसे बात हुई थी, कि शेख जैद से कुचलाक का एरिया जो है 50 किलोमीटर है, पूरा कोयटा कवर होता है। उन्होंने कहा था हम 2 डीएमयू चलाएंगे, उसके ऊपर आप हमें 3 नए रेलवे स्टेशन बना के दें और इस ट्रैक को अपलिफ्ट करें। अल्लाह ताला के फजलो करम से उन्होंने अपने बजट में ये पैसा रिफ्लेक्ट हो रहा है और उन्होंने हमें 6 महीने का हदफ दिया है कि पैसे हम देंगे, आपने ये हमें बना के भी देने हैं और इंपोर्ट करके भी देने हैं, और सारा पाकिस्तान रेलवे करेगा, ये बकौल उनके। तीसरा, अब इंशाल्लाह 17 से 21 अगस्त तक मेरा कराची का है विजिट। उसके अंदर हमारी नासिर हसन शाह साहब से बात हुई है और वजीर आला जो है हमारे सिंध, उनके साथ भी, कि हम जिस तरह पंजाब मॉडल और बलूचिस्तान मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी आप इन्वेस्ट करें, इसी तरीके से मेरी ख्वाहिश है। और उन्होंने कमिट भी किया कि रोडी का स्टेशन वो टेक ओवर करेंगे
اور اس کو اپلفٹ کریں گے لاہور کی طرح کا وہ خود کریں گے. اسی طرح جو کراچی کا اسٹیشن ہے وہ لاہور کی طرز پہ جیسے ہم نے انوگریشن کی ہے, انشاءاللہ کراچی میں ہم ایسا ہی اسٹیشن بنانے جا رہے ہیں. 10 ستمبر کو اس کا افتتاح ہے اور وہ بھی کوشش کریں گے کہ اس میں ہمارے وہاں کے جتنے دوست ہیں, جتنے ہمارے اتحادی ہیں, اس میں ان کے ہائی آفیشل جو ہیں وہ شریک ہوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری اس وقت پائپ لائن میں. لیکن جو بڑی بات میں کرنے جا رہا تھا کہ جس طرح لاہور راولپنڈی کا سیکشن تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے میں ہم لاہور سے راولپنڈی اور راولپنڈی سے لاہور پہنچ جائیں گے. جب ہمارا ڈبل ٹریک ہو جائے گا, نیا سگنل سسٹم امپلیمنٹ ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہم سندھ گورنمنٹ سے کہیں گے کہ جیسے ابھی انہوں نے اسٹیشنز اڈاپٹ کیے ہیں اور صفائی ستھرائی کا نظام کا ایگریمنٹ کرنے ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں, وہ بڑا کوآپریٹ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. اسی طرح جو سبی سے روڑی ہے وہ 250 کلومیٹر, ٹھیک کہہ رہا ہوں, 250 کلومیٹر سبی سے روڑی, روڑی سے سبی ہے. یہ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے سندھ حکومت ہمیں بنا کے دے. لیکن جو روڑی سے کراچی ہے 480 کلومیٹر, 480 کلومیٹر, وہ انشاءاللہ ایک فائنینشل انسٹیٹیوشن ہے ورلڈ کا, میں نام نہیں لوں گا, اس نے وزٹ کر لیا ہے اور چند دنوں تک, مہینوں 2 مہینے تک فیزیبلٹی رپورٹ وغیرہ تیار ہو رہی. وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ریلوے کو جدید سہولیات سے لیس کرنا وزیر اعظم کا ویژن ہے. پاکستان ریلوے کے سسٹم کو ڈیجیٹائز کرنا ترجیح تھا جو کہ بدتدریج جاری ہے. اسٹیشنز پر وائی فائی کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. راولپنڈی, خانیوال اور کراچی اسٹیشن پر صفائی کا نظام آؤٹ سورس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈرائی پورٹس اور ریلوے ہسپتالوں کو بھی آؤٹ سورس کیا جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ریلوے ٹورزم کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے. وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. آپ نے ملاحظہ کی. ناظرین, وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان ریلوے کے سسٹم کو ڈیجیٹائز کرنا ہماری ترجیح تھی جو کہ بتدریج جاری ہے. ریلوے کو جدید سہولیات سے لیس کرنا وزیر اعظم کا ویژن ہے. 1300 کچھ کا بنتا ہے کلومیٹر کراچی تک کا ایریا, تو اس کے اوپر بھی کام جاری ہے. لیکن ایک اور ایگریمنٹ جو میں اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب, وزیر اعظم پاکستان کی 4 سال سے کوشش تھی, اس کو ہم نے عملی جامہ پہنایا پچھلے دنوں کابل جا کر. اور وہ کیا ہے, وہ کوہاٹ سے مزار شریف 850 کلومیٹر کا ٹریک, اور مزار شریف سے ازبک تک کا جو باؤنڈری ہے وہ 75. فیصل آباد میں وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ریلوے کو جدید سہولیات سے لیس کرنا وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ویژن ہے. راولپنڈی, خانیوال اور کراچی اسٹیشن پر صفائی کا نظام آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں. ریلوے ٹورزم کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے. آگاہ کریں گے آپ کو, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت پر بھاری ٹیرف عائد ہونے کے بعد امریکہ بھارت تعلقات شدید سرد مہرے کا شکار ہو گئے ہیں. بھارت نے جوابی رد عمل دیتے ہوئے اپنے وزیر دفاع کا طے شدہ دورہ امریکہ منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مودی سرکار نے امریکہ کے ساتھ جدید ترین لڑاکا طیاروں, فوجی گاڑیوں اور میزائلوں کی خریداری کے تمام معاہدوں کو بھی معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم مودی فیلڈ مارشل عاصم منیر کا سامنا کرنے سے خوفزدہ ہیں. بلومبرگ کے مطابق بھارت نے امریکی صدر اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات رکوانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے. ناکامی پر مودی کروشیا کا بہانہ بنا کر واشنگٹن نہیں گئے. اسی تناؤ بھرے پس منظر کے بعد بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں سرد مہری آنے لگی ہے. مزید خبروں میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ مارکہ حق کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح کھل کر پاکستان اور اس کی سول اور عسکری قیادت کی تعریف کی, وہ پاکستان امریکہ تعلقات کا خوشکن موڑ ہے. ہمارے نمائندے ریاض برکی کے مطابق امریکی صدر مختلف عالمی فورمز پر اب تک 27 مرتبہ پاکستان بھارت جھڑپ کا ذکر کر چکے ہیں. مارکہ حق میں بھارت کو جنگی میدان کے ساتھ ساتھ سفارتی میدان میں بھی زبردست ہزیمت اٹھانا پڑی. پاکستان کے بھرپور دفاعی وار کی تاب نہ لا کر بھارتی قیادت نے فوری جنگ بندی کے لیے ہنگامی طور پر امریکی صدر سے رابطہ کیا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی تو کرا دی, مگر وہ پاکستان کی بہترین حکمت عملی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے. پاکستان نے خطے میں قیام امن کے لیے امریکی صدر کے کردار کو سراہا, تاہم بھارت نے روایتی ہٹ درمی برقرار رکھی. 31 مئی کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارت کی سرزنش کی اور انتباہ کیا کہ اگر اس نے جارحانہ
رویہ جاری رکھا تو امریکہ کو بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ Pakistan representatives are coming in next week. I think the deal I'm most proud of is the fact that we're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade. Nobody talks about it, but we had a very nasty potential war going on between Pakistan and India. And now if you look, they're doing fine. 6 جون کو بھارت کو ایک بار پھر عالمی سطح پر اس وقت سبکی ہوئی جب امریکی صدر نے پاکستان بھارت جنگ بندی میں مرکزی کردار ادا کرنے کی بات دہرائی۔ بھارت ابھی اپنے زخم چاٹ ہی رہا تھا کہ وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ملاقات نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ 2 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی، جس میں متعدد معاملات اور 2 طرفہ تعلقات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا۔ امریکی صدر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھارت کے ساتھ جنگ بندی ختم کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی بھرپور پذیرائی کی۔ I was honored to meet him today. I want to thank him for not going into the war, just ending the war. I'm so happy for working a trade deal with Pakistan. Well, they know Iran very well, better than most. 19 جولائی کو تو امریکی صدر نے پاک فضائیہ کے ہاتھوں 5 بھارتی جہاز گرنے کی تصدیق کر کے بھارت کی شکست پر مہر ثبت کر دی۔ I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. It seems like a new form of war. مارکہ حق سے نہ صرف عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے، بلکہ اس نے یوم آزادی کے موقع پر قوم میں ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ ریاض برکی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں طلباء سے خصوصی نشست کی اور طلباء کے سوالوں کے مفصل اور مدلل جواب دیے۔ اس موقع پر طلباء کی جانب سے سیشن کی بھرپور پذیرائی کی گئی اور قومی جذبے کا اظہار کیا گیا۔ It is not that we only preach, we disseminate. We are scientists, we are knowledgeable, we have strategic planning. اور یہی وجہ ہے کہ 12 کو فوکس کرنے کے بعد صرف 6 کو کرایا گیا ہے۔ ایسے کیوں ہوا ہے؟ ایسے اس لیے ہوا ہے کہ we do not believe only the force, we do not believe only in technology, we believe in ethics, we believe in humanity. وہی کام کرائیں گے جنہوں نے انسانیت پہ حملہ کیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی، پاک افغان سرحد سے بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گرد خارجیوں کی پاکستان میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ 33 دہشت گرد جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 7 اور 8 اگست کے درمیانی شب سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع یوب کے پاکستان افغانستان سرحدی علاقے سمبازا کے قریب بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخارج کے ایک دہشت گرد گروہ کی نقل و حرکت کا پتہ لگایا۔ سیکیورٹی فورسز نے پاکستان کے اندر دراندازی کی کوشش پر 33 خارجی دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ مارے جانے والے دہشت گردوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ سیکیورٹی فورسز ملکی سرحدوں کے تحفظ کے لیے پوری طرح سرگرم عمل ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یوب سے پاکستان افغانستان سرحد عبور کرنے کی کوشش کرنے والے بھارتی فتنہ الخارج کے خلاف کارروائی کے دوران 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔
یوم آزادی کے موقع پر معروف گلوکار حسنین علی پراچا کا نیا ملی نغمہ اے میرے وطن ریلیز کر دیا گیا۔ اس نغمے میں وطن سے محبت اور شہداء کی قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ तुझ से आबाद मेरा चमन है मेरे वतन। एहसान उसका है ये वजूद से तेरे सांसें जुड़ी जान भी है तेरे लिए हो जान भी है तेरे लिए ऐ मेरे वतन जिसे ही है नाम मेरा ऐ मेरे वतन। पैगाम माजी पाकिस्तान हम सब का पाकिस्तान। यौम आज़ादी मार्का हक के मौके पर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कस्तूरी लाल का पैगाम माजी। मेरे दादाजी ने ये फैसला किया कि इस्लामी माशरे में हमारा जीना उठना बैठना ज़्यादा महफूज है। कस्तूरी लाल का कहना था कि इसीलिए हमने यही सरजमीन अपना वतन बनाने का इरादा किया। 14 अगस्त 1947 के बाद ना मेरे जो दादाजी थे ना, अली चंद उनका नाम था, उन्होंने भी ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो उनके बकौल कि बेटा आपके लिए अच्छा जो है ना एनवायरनमेंट या माहौल यही है। हमारी जितनी भी नस्ल थी हमने ये फैसला किया कि इस्लाम में या यहाँ पर इस्लामी हुकूमत बनती है या इस्लामी लोग रहते हैं, इन लोगों में हमारा जीना उठना बैठना प्रोटेक्टिव है और इसलिए हम यहीं रहेंगे। नाज़रीन, यौम आज़ादी सिर्फ जश्न नहीं, कुर्बानियों के तसलसल की दास्तान है। यौम आज़ादी मार्का हक के मौके पर अवाम ने पैगाम देते हुए कहा कि यौम आज़ादी तजदीद अहद का दिन है। उन्होंने कहा कि ये दिन हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों की याद दिलाता है। जब से ज़मीन ने पुकारा सोचा न हमने दोबारा। हमारी हर खुशी हर कामयाबी सब तेरे नाम है। इतनी बड़ी दुनिया में तू ही हमारी पहचान है। हमारे दिन की वतन का नाम पाकिस्तान है। वो कभी जुदा नहीं हो सकते। हमारा पेशा कोई भी हो लेकिन मकसद एक है, इस वतन को हम बेनाद हो। हम सबके दिल की एक आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़मीन ने पुकारा। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज हो रहा है। इजलास सलामती कौंसिल के मुतअद्दिद अरकान की दरख्वास्त पर हो रहा है। इजलास में गजा शहर का कंट्रोल संभालने के इजरायली ऐलान के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास इसराइली मंसूबे पर बढ़ती हुई आलमी तशवीश के तनाजुर में हो रहा है। फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर ने कहा कि कई ममालिक इजरायली जहरियत पर अपनी तशवीश का इजहार करना चाहते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इजरायली काबीना की जानिब से गजा शहर के गैर कानूनी और नाजायज़ कंट्रोल हासिल करने के मंसूबे की मंजूरी की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने इजरायली काबीना के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि यह फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ पहले से जारी तबाहकुन जंग में ख़तरनाक इजाफे के मुतरादिफ इक़दाम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़ौजी कार्रवाइयों की यह तोसी पहले से जारी इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन और ख़ित्ते में अमन के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगी। उन्होंने कहा कि जारी अलमिया की असल वजूहात फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइल का तवील गैर कानूनी कब्ज़ा है जिसे पसे पुश्त नहीं डाला जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा शहर का कंट्रोल संभालने के इजरायली हुकूमत के फैसले पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। एंटोनियो गुतेरेस की तर्जुमान ने एक बयान में सेक्रेटरी जनरल के हवाले से कहा है कि इजरायली हुकूमत का ये फैसला बहरानी सूरत हाल में खतरनाक इजाफा है। इससे लाखों फ़लस्तीनियों को जिन्हें पहले ही संगीन सूरत हाल का सामना है मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया कि इजरायली हुकूमत के इस फैसले की वजह से गजा में बड़े पैमाने पर जबरी नकल मकानी, शहादतें और तबाही होगी। गजा शहर का कंट्रोल संभालने के इजरायली हुकूमत के फैसले पर आलमी सतह पर शदीद तनकीद जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, बरतानिया, स्पेन, बेल्जियम, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन, चीन, जर्मनी और दीगर ने इजरायली फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि इजराइल का फैसला एक ख़तरनाक कदम है। सऊदी अरब ने इजरायली काबिज़ हुक्काम के गजा पर कब्ज़े के फैसले की शदीद मज़म्मत की है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में फ़लस्तीनी भाइयों के खिलाफ भूख और ज़ालिमाना सलूक और नस्ल कुशी की कार्रवाइयों पर सख्त एहतजाज किया है। जर्मनी ने इसराइल को फ़ौजी साजो सामान की बरामद रोकने का फैसला किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि जर्मनी अगले नोटिस तक इसराइल को गजा में इस्तेमाल होने वाले फ़ौजी सामान की बरामद की इजाज़त नहीं देगा। तुर्की ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो इसराइली हुकूमत के गजा पर कब्जे के मनसूबे को रोकने के लिए दबाव बढ़ाए। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि आलमी बरादरी को इस फैसले पर अमल दरामद को रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 15 अगस्त को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए सदर ट्रंप का कहना है कि रूसी सदर से मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में होगी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सदर पुतिन ने अमेरिका से कहा कि मशरक़ी यूक्रेन के बदले वो जंग खत्म करेंगे, जबकि ट्रंप ने कहा कि हम कुछ इलाके वापस लेने, कुछ तब्दील करने की राह देख रहे हैं। पुतिन ने ट्रंप से मुत्तहिदा अरब अमारात में मुलाकात का इशारा दे दिया। मकबूजा वादी कश्मीर के जिला कुलगाम में भारतीय फोर्सेस का पुरतशद्दुद ऑपरेशन मुसलसल 9वें रोज भी जारी रहा। ऑपरेशन की वजह से इलाके के लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेस ने यह ऑपरेशन जिले के इलाके अकाल देवसर में गुज़श्ता जुमे की रात को शुरू किया था। ऑपरेशन में भारतीय फौजियों, पैरामिलिट्री और पुलिस के अलावा कमांडोज हिस्सा ले रहे हैं और गनशिप हेलीकॉप्टरों और ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इंतहा पसंद हिंदुत्व नजरिए पर मबनी बीजेपी और आरएसएस की दहशतगर्दी का पर्दा चाक हो गया है। साबिक तर्जुमान यशवंत शिंदे ने आरएसएस और बीजेपी रहनुमाओं का दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का इंकशाफ कर दिया है। उनके मुताबिक आरएसएस मुसलमानों को फंसाने के लिए भारत में दहशतगर्द हमलों की हिदायत देती है। महाराष्ट्र में बम धमाकों का मंसूबा आरएसएस से मुंसलिक अफराद ने बनाया। नाडेर में 2006 में बम तैयार करते वक्त फट गया, जिसमें मुतादिद अफराद हलाक हुए। आरएसएस के रुकन अंद्रेश कुमार ने उन्हें दहशतगर्द मंसूबों में शमूलियत की पेशकश की। आरएसएस नेटवर्क ने औरंगाबाद की मस्जिद की निशानदेही करके बम बनाने की तैयारी की। और मोदी के इंतखाबी फ्रॉड का पर्दा चाक हो गया है। मोदी राज में जमहूरियत नाम की और इलेक्शन एक स्टेज ड्रामा बन चुका है। जमहूरियत का लिबादा ओढ़े मोदी सरकार ने इंतखाबी फ्रॉड को रियासती पॉलिसी बना लिया। मोदी राज में वोट बेईमानी और ईवीएम से जीत फिक्स हो गई। बिहार इलेक्शन से पहले राहुल गांधी ने मोदी के जाली मैंडेट का भांडा फोड़ दिया। बीजेपी के वोटरों की तादाद बढ़ाने के लिए जाली वोटर्स को शामिल किया जा रहा है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में 1 करोड़ से जायद नए वोटर्स ने वोट दिया जो रजिस्टर्ड नहीं थे, ये कहना था राहुल गांधी का। पाकिस्तान का डीपी वर्ल्ड के इश्तराक से दुबई में ज़ीरो कोस्ट एक्सपोर्ट मार्ट के क़याम का ऐलान किया है। दुबई की बंदरगाह जबल अली के करीब
पाकिस्तान मार्ट के नाम से तिजारती मरकज़ कायम किया जाएगा। डीपी वर्ल्ड पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान के लिए तिजारती मरकज़ की तामीर बिला तामीराती लागत करेगा। एक्सपोर्ट मार्ट से बरामद कुनंदगान की मसनूआत को नुमाइश, तरसील और आलमी मंडी तक बराह रास्त रसाई मिलेगी। इस अहम मनसूबे से टेक्सटाइल, गारमेंट, सर्जिकल और खुराक समेत दीगर शोबे मुस्तफ़ीद होंगे। बरामद कुनंदगान को रिलीफ देने के लिए फ़रोख्त से कबल कोई टैक्स या फीस लागू न करने का फैसला किया गया है। SIFC के ताउन से ये इक़दाम आलमी सतह पर पाकिस्तान की मुस्बत शनाख्त मुतारिफ कराएगा। चीन अपने दूर दराज देही इलाकों की तरक्की पर भी खुसूसी तवज्जो दे रहा है ताकि मकामी अफराद को रोज़गार के मौक़े मुहैया हो सकें। एक ऐसे ही देहात के बारे में बता रहे हैं चीन से हमारे नुमाइंदे रियाज बरकी। ये चीन के सूबे जोजियान का दूर दराज देहात जिनसिंग है, जहाँ चीन के सदर ने 2006 में यहाँ का दौरा किया। यहाँ पे एक किसान, उसके 2 बच्चे थे, उनके घर पे कुछ देर वो रहे। उन्होंने इस इलाके की खूबसूरती को देख के उसको यहाँ पे हिदायत जारी की कि यहाँ के लोगों को उनके घरों पे ही रोजगार फराहम किया जाए, सिर्फ फार्मिंग पे वो न रहें, क्योंकि इतना खूबसूरत इलाका है। जिसके बाद इस इलाके को तरक्की दी गई, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, यहाँ पे होटल बनाए गए और दुनिया भर से लोगों को, सियाहों को मुतवज्जो किया गया। जब वो यहाँ का विजिट करते हैं, यहाँ के लोगों को इनकम होती है। उसके अलावा दुनिया भर की जो हुकूमतों के अहदेदार हैं वो भी आते हैं, इस देहात को देखते हैं, इसकी तरक्की से न सिर्फ मुतासर होते हैं बल्कि यहाँ पे जो चीनी तजर्बा है उससे इस्तेफादा करते हैं और वापस अपने घरों, वापस अपने मुल्कों में जाकर अपने जो इलाके हैं, अपने जो दूर दराज के देहात हैं, उनको भी इसी तर्ज पर तरक्की देते हैं। आपको आगाह करेंगे, सिंध के सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का 3 रोज़ा उर्स की तकरीब का इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने तकरीबात का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उन्होंने दरगाह पर चादर चढ़ाई। उर्स के पहले रोज़ सूबे भर में आम तातील का ऐलान किया गया है, जबकि दूसरे रोज़ कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें शुअरा, अदीब, दानिश्वर शाह लतीफ़ की ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे, जबकि आखिरी रोज़ वज़ीर आला शाह लतीफ़ अवार्ड तकसीम करेंगे। सिंध के अजीम मुफक्किर, सूफी शायर और बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 282वें सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ भिट शाह में हो गया है। बरे सगीर के इस अजीम सूफी शायर की ज़िंदगी के हवाले से देखेंगे शिराज अली डाहरी की रिपोर्ट। सिंध की धरती सदियों से सूफिया कराम, बुजुर्गान दीन, इल्म, मोहब्बत, अमन व रवादारी की सरजमीन रही है। उन्हीं अजीम हस्तियों में एक रोशन सितारा शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हैं, जिन्होंने अपने कलाम और तालीमात से मोहब्बत, बर्दाश्त और इंसानियत का पैगाम हर जगह पहुँचाया। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सन 1102 हिजरी में सिंध के इलाके हाला में पैदा हुए। आपका असल नाम अब्दुल लतीफ़ और वालिद का नाम शाह हबीब था। आपने कम उम्री में ही कुरान व हदीस, फिक्का और फारसी व अरबी अदब में महारत हासिल की। सूफी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपनी शायरी में सिंध की लोक दास्तानों, फितरत के हुस्न और सूफियाना अफकार को निहायत सादगी और गहराई से पेश किया। उनकी मशहूर किताब शाह जो रिसालो सिंधी ज़बान का गोया आईना है, जो इश्क़ हकीकी, अमन और मसावात का पैगाम देता है। भिटाई का कलाम महज शायरी नहीं बल्कि इंसानियत की रहनुमाई है। उनके कलाम में आम लोगों से मोहब्बत, इंसानियत का दर्स, सहराओं, समंदर की अहमियत और ख़वातीन के हुकूक के बारे में है, जिसे मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जमा भी किया गया। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई 1165 हिजरी में विसाल फरमा गए, मगर उनका पैगाम आज भी भिट शाह के मज़ार से दुनिया भर के ज़ायरीन को मोहब्बत और अमन का दर्स देता है। हर साल उर्स भिटाई पर सिंध भर से अकीदतमंद जमा होते हैं, जहाँ सूफियाना मौसीकी, कवाली और कलाम भिटाई की महफिलें सजती हैं। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, भिट शाह, मटियारी। और मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। जश्न आज़ादी करीब आते ही बाजारों में सब्ज़ हिलाली परचम और झंडियों की फरोख्त भी बढ़ गई है। तफसील बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। फैसलाबाद में जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। बाजारों में छोटे बड़े बुजुर्ग और खवातीन सभी कौमी परचम की खरीदारी कर रहे हैं। जश्न आज़ादी की मुनासबत से लगाए गए बाजारों और स्टॉल से शहरी बैजिज, झंडियों, स्टिकर समेत आराइशी सामान की खरीदारी में मसरूफ हैं। ताहम कौमी परचम की खरीदारी उरूज पर है। जश्न आज़ादी तो हर मरतबा मनाते थे, मगर इस मरतबा हमने इंडिया को शिकस्त दी हुई है, तो उसके बाद पहला हमारा जश्न आज़ादी है, तो इस मरतबा मज़ा ज़्यादा आ रहा है। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, इसका जश्न मनाना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। कौमी परचम झंडियों की खूब फरोख्त होने पर दुकानदार भी खासे खुश हैं। जैसे जैसे दिन कम हो रहे हैं, ग्राहकों की गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। पिछले साल की निस्बत इस साल ज्यादा काम है, ठीक है। बहुत जोशो खरोश के साथ लोग झंडियां, परचम घरों को सजा रहे हैं। पाकिस्तान के हाथों जंग में भारत की इबरतनाक शिकस्त ने भी पाकिस्तानियों की जश्न आज़ादी के मजे को इस साल दुबाला कर दिया है।
हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहने का इम्कान है। ताहम शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन, दादू, सिब्बी 44, नौकुंडी और बखर में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेल की खबरों में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को पहले एक रोज़ा मैच में 5 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरा मैच कल तरोबा में ही खेला जाएगा। सीरीज़ पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं मुजीबुल हक से। तरोबा में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज़ को पहले बैटिंग की दावत दी। मेज़बान टीम 49 ओवर्स में 280 रन बनाकर आउट हुई। एवन लुइस ने 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 60 रन बनाए। कप्तान शेह होप ने भी 55 रन की इनिंग्स खेली। रॉस्टन चेज ने भी हाफ सेंचुरी स्कोर की और 53 रन बनाकर आउट हुए। गोदाकेश मोती ने 31 और कैसी कार्टी ने 30 रन का इजाफा किया। वेस्टइंडीज के स्कोर में 24 एक्स्ट्राज भी शामिल थे। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने 4, वसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। साइम अयूब, सुफियान मुकीम और सलमान अली आगा ने एक-एक खिलाड़ी को चलता किया। पाकिस्तान ने हदफ का ताकुब शुरू किया तो साइम अयूब 5 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक 29 रन बना सके। बाबर आजम ने 47 रन जोड़े। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 53 रन की इनिंग्स खेली। सलमान अली आगा 23 रन बनाकर चलते बने। 180 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद डेब्यूटेंट हसन नवाज और हुसैन तलत के दरमियान नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी पार्टनरशिप कायम हुई और पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ 49वें ओवर में 5 विकेटों पर हासिल किया। And he goes straight. प्लेयर ऑफ द मैच हसन नवाज 63 रन के साथ नॉट आउट रहे। उनकी इनिंग्स में 3 छक्के और 5 चौके शामिल थे। हुसैन तलत ने 41 रन बनाए। मुजीबुल हक, पाकिस्तान टेलीविजन। नाज़रीन, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले वनडे मैच के हीरो हसन नवाज ने कहा है कि कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा था कि मैच फिनिश करके आना है। वनडे में ये मेरा डेब्यू था। प्लेयर ऑफ द मैच बनकर इसे यादगार बनाया। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाबर भाई, रिजवान भाई, आगा भाई जिस तरह वो खेलते हैं, बड़े प्लेयर हैं, मैच विनर प्लेयर हैं, तो जिस तरह वो खेलते हैं उनसे सीखते हैं काफ़ी। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। मैच जीतने में अहम किरदार था उनका। जब टॉप ऑर्डर में हम ऊपर हमारे 1-2 जल्दी आउट हो गए थे तो बहुत अच्छा उन्होंने संभाला। और रिजवान और मैं जब खेल रहे थे तो हमारा यही प्लान था कि मुझे वो यही कह रहा था कि तेरा डेब्यू है तो तूने ख़त्म करना मैच फिनिश। जब वो आउट होकर जा रहा था तब भी उसने यही बोला था आपने फिनिश करना। तो वही प्लान था कि कॉन्फिडेंट भी था। पीछे जो मैं PSL में मैच ख़त्म करता आ रहा था उस चीज़ का भी था कि मैं एंड पे बड़े हिट मार लेता हूँ, तो उसी चीज़ पे था। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सक्सेस मिली। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग ने दुनिया की दूसरी सबसे दिलचस्प लीग का एजाज़ हासिल कर लिया। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने एक रिपोर्ट में जारी की है जिसमें PSL को दुनिया की दूसरी सबसे दिलचस्प और सनसनीखेज फ्रेंचाइज लीग करार दिया गया है। PSL ने सनसनीखेज मैचेस, बैटिंग और बॉलिंग के दरमियान बेहतरीन तवाज़ुन और शायकीन को हर लम्हा दिल थामे रखने वाले मुकाबलों की बदौलत ये एजाज़ हासिल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक एंटरटेनमेंट इंडेक्स में PSL ने IL T20, The 100, CPL और बिग बैश जैसी बड़ी लीग्स को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक PSL में पहली इनिंग्स का औसत स्कोर 180 रन है जो दुनिया की तमाम लीग्स में सबसे ज़्यादा है।
PSL के 27.5% मैचेस का फैसला आखिरी ओवर में हुआ, जो IPL के 28.9% मैचेस के करीब है। PSL में फी मैच सबसे ज्यादा चौके लगने का रिकॉर्ड बनाया गया है। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर खिलाने में भी PSL IPL से आगे है। PSL में 351 इंटरनेशनल खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिला। IPL में इंटरनेशनल खिलाड़ी खेलने की तादाद 335 रही, जो इस बात का सबूत है कि दुनिया के बड़े बैनुल अक़वामी सितारे बाकायदगी से PSL का हिस्सा बनते हैं। आयरलैंड ने पाकिस्तान खवातीन टीम को दूसरे T20 मैच में 4 विकेटों से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज में आयरिश टीम को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल हो गई है। डबलिन में खेले गए मैच में पाकिस्तान खवातीन टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 167 रन बनाए। शवाल जुल्फिकार 33, नतालिया परवेज 31 और मुनीबा अली 27 रन के साथ टॉप स्कोरर रहीं। मेजबान टीम की जानिब से कारामरे और लारा मैकब्राइड ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। आयरलैंड ने मतलूबा हदफ 20वें ओवर की आखिरी इनिंग पर 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। ऑर्ला प्रेडिक्स 51 रन के साथ नुमाया रही। लारा डेलने ने 42 रन की इनिंग्स खेली। रेबेका स्टॉकल 34 रन के साथ नॉट आउट रहीं। पाकिस्तान की रामीन शमीम ने 3 विकेटें हासिल की। नाज़रीन, 12वीं वर्ल्ड गेम्स का चीन में बाकायदा आगाज हो गया है। चेंगयू के तायानफू इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। शानदार आतिशबाजी और लाइट शो का मुजाहरा तकरीब का खासा रही। वर्ल्ड गेम्स में 30 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले शामिल हैं। ओलंपिक में जगह न बना सकने वाले खेल स्क्वॉश, किक बॉक्सिंग और टग ऑफ वॉर के मुकाबले भी इवेंट का हिस्सा हैं। चीन हर 4 साल बाद होने वाली गेम्स की पहली मेज़बानी कर रहा है। पहली मरतबा वर्ल्ड गेम्स का आगाज़ 1981 में हुआ था। वर्ल्ड गेम्स का मकसद ऐसे खेलों को भी आलमी सतह पर फ़रोग़ देना है जो ओलंपिक मुकाबलों में शामिल नहीं होते। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। न्यूज़ टीम के हमराह मनाज़िर हुसैन और मलिक को दीजिए इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़। जब से ज़मीन ने पुकारा, सोचा न